Hello students, welcome in our geography class. Today we are going to continue our seventh chapter, human occupation measure types. So earlier we discussed about the development and the changing nature of human occupation. And this we discuss about the period wise, prehistoric, ancient, modern, like that, medieval. So today we are going to classify the human occupation, right? So method of earning livelihood of economic activity of man may be classified into 5 category at present. अभी अगर हम लोग लाइवलीहुड देखें कि ह्यूमन का अर्निंग किस तरीके से किस मेथड से हो रहा है, उस मेथड को अगर हम क्लासिफाई कर लें तो ह्यूमन के ऑक्यूपेशन को भी हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? कम से कम 5 पार्ट्स में. एंड दीज 5 क्लासिफिकेशंस आर प्राइमरी ऑक्यूपेशन, secondary occupation, tertiary occupation, quaternary occupation and quinary occupation. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी से तो हम सभी काफी अवेयर हैं, ठीक है. लेकिन ये बाकी के दो जो हैं वो जरा न्यू हैं, तो हम इन सबको डिस्कस करेंगे. और हम इस क्लासिफिकेशन को किस बेसिस पर रखते हैं? These classification have been done on the basis of continuously increasing distance of Earth's natural resources. So in primary occupation, basically hunting, gathering, agriculture, animal husbandry and mining related works included. Whereas in secondary occupation, we include the manufacturing, construction, energy production and other kind of processing and production kind of work. Whereas tertiary sector is also called service sector. So the services like transportation, trade, communication, entertainment, banking, insurance, these entire things included in tertiary sector. And what about the quaternary and quinary? The new kind of services, the indirect services like information and research management, education, health and security, they all are included in quaternary. And in the quinary occupation, basically the executive, manufacturer, research governance, legal and technical advisors, they all are included in the fifth occupation, that is quinary occupation. Don't worry, we reveal them very descriptive form later. So let me start with the historical development of people. So students, the historical development of people involved in various occupation, right? जब से ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है तब से ह्यूमन डिफरेंट तरीके के ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व रहा है. एंड ऑल्सो इट अकर्स इन प्रोग्रेसिव स्टेज इन एन इकोनॉमी. So it therefore clarifies that the people were mainly engaged in primary occupation in the ancient period and later on in secondary occupation during the industrial revolution and then the increasing trend towards the tertiary, quaternary and quinary occupation. Human जब से आया है तब से लेकर के आज तक इसमें काफी चेंजेस देखने को मिले हैं और वो चेंजेस इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी देखने को मिले हैं. जहां एंशिएंट टाइम में ह्यूमन टोटली डिपेंड करता था प्राइमरी एक्टिविटीज में, वहीं इंडस्ट्रियल एज में ह्यूमन जो है सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व हुआ और धीरे धीरे ह्यूमन के डेवलपमेंट ने इसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी एक नया एम दिया, एक नया सिस्टम दिया और अब ह्यूमन जो है वो कई डिफरेंट तरीके की सर्विसेज में इन्वॉल्व है और अकॉर्डिंग टू द मेथड, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, दीज सर्विस सेक्टर आर फर्दर क्लासिफाइड. So let me start with the primary occupation. क्या होता है प्राइमरी ऑक्यूपेशन? प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऐसा ऑक्यूपेशन होता है जिसमें डायरेक्टली नेचुरल प्रोवाइडेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल लैंड को, वाटर को, वेजिटेशन और मिनरल्स को हम लोग यूजफुल बनाते हैं और इनका यूज करते हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने की. तो ऑक्यूपेशन इन विच डायरेक्टली यूटिलाइज नेचुरल प्रोवाइडेड रिसोर्सेज to fulfill our needs are called primary occupation. So these are directly related to the condition of the environment. जितना भी primary occupation है ये directly relate करता है अपने natural environment. And majorly these occupation produce two kind of things, maybe food or maybe raw material, right? So most of the primary occupation symbolize simple, traditional, primitive socio-economic structure.
and the distribution of people engaged in primary activity in the world is uneven. आपको पता है ज्यादातर जो प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट है पूरे वर्ल्ड का, ये अनइवन है, एक जैसा नहीं है. डेवलपिंग नेशंस में जहां ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट प्राइमरी ऑक्यूपेशन का है, वहीं डेवलप्ड नेशन में सेकेंडरी सेक्टर वर्क का. और प्राइमरी ऑक्यूपेशन में भी डिफरेंशिएशन है. बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो सिर्फ माइनिंग करती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स, एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर इन्वॉल्विंग इन agricultural or other kind of work. So let me discuss them. In Canada stands highest among the developed countries on account of two primary occupations. वैसे तो मैंने अभी क्या रिवील किया आपके सामने कि ज्यादातर डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो सेकेंडरी वर्क करते हैं, लेकिन कनाडा एक ऐसा देश है जहां पर प्राइमरी ऑक्यूपेशन, दो बड़े प्राइमरी ऑक्यूपेशन किए जाते हैं, लंबरिंग लकड़ी काटना और पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन. एंड प्राइमरी ऑक्यूपेशन आर वेरी सिग्निफिकेंट एज दे प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज. प्राइमरी ऑक्यूपेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है क्योंकि ये हमें फूड देते हैं और साथ में रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं. So these occupations have nourished the human race for more than 95% of its period of existence. स्टूडेंट्स, पता है आपको ह्यूमन का जो सिचुएशन है, उसकी जो एंटायर लाइफ है, उस एंटायर लाइफ जब से वो आया है, अराइवल 10,000 ईयर पहले से लेकर के आज के मॉडर्न मैन तक, 95% उसका सारा लिविंग पीरियड जो है वो टोटली डिपेंडेंट था प्राइमरी सेक्टर वर्क पर. सेकेंडरी सेक्टर तो 18th सेंचुरी के बाद में शुरू हुआ है और टर्शरी सेक्टर की शुरुआत तो बहुत ही अभी न्यू है. So what kind of activity, what kind of occupation are included in primary occupation? Basically hunting, food gathering and forest produce, lumbering, fishing, animal industry, animal husbandry, agriculture, mining. These kinds of works, these kinds of occupation are counted in this particular sector. So on the basis of differential land use, the major reasons of primary occupation in the world are mentioned below. Here the dotted line shows the hunting, fishing or gathering activity. In this area, right, and this area, यहाँ पे कौन सा वर्क ज्यादा होता है? हंटिंग, फिशिंग और गैदरिंग का. वहीं ये जो सीधी लाइनें हैं ये शो कर रही हैं पेस्टोरल नोमेडिज्म. इन एरियाज में पेस्टोरल नोमेडिज्म ज्यादा होता है. ये स्ट्रेट लाइन शो करती हैं प्रिमिटिव एग्रीकल्चर. तो जहां जहां पे ये स्ट्रेट लाइंस हैं ये शो कर रही हैं प्रिमिटिव एग्रीकल्चर से. ये ब्लॉक शो कर रहे हैं कमर्शियल पेस्टोरल वर्क. ठीक है, ये फ्लैंट लाइंस शो कर रही हैं एक्सटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर वर्क. दिस एरिया. ये ब्लॉक सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को शो कर रहे हैं और ये शेडेड एरियाज जो हैं ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को शो कर रहे हैं. राइट, और ये वाला जो हिस्सा है ये, इसमें यहां पर होता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर. राइट, तो इस तरीके से हमारा जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. कहीं पर कोई वर्क होता है तो कहीं पर कोई और वर्क होता है. अंडरस्टूड? तो हम इनको जरा डिफरेंशिएट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू रीजंस. तो हमने दो रीजंस यहाँ क्लासिफाई किए, ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन. ट्रॉपिकल रीजन में पहला एरिया इक्वेटोरियल वेट फॉरेस्ट वाला, अमेज़न और कॉन्गो टाइप एरिया, जहाँ पर बहुत ज्यादा घने हरे भरे जंगल पाए जाते हैं. दूसरा एरिया हमने क्लासिफाई किया ट्रॉपिकल वेट अरेबल रीजन्स, यानी कि ईस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न ब्राजील वाला हिस्सा. तीसरा है वेट ड्राई लो लैटिट्यूड सवाना सुडान वाला हिस्सा, इंडिया ब्राजील में पाया जाता है ऐसा हिस्सा, खेती होती है यहाँ पर. ट्रॉपिकल हाईलैंड्स, इथोपियन टाइप एंड डेजर्ट एरिया, सहारा, अरब, थार, सेंट्रल एशिया, मंगोलिया. एंड these all area having the differentiated physiography and differentiated climatic condition. So this area also having different type of primary occupation.
नाउ द अदर वन इज टेम्परेट रीजन. हम पूरा ग्लोब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. ठीक है, ये पहला हिस्सा. एक सेकेंड. 0 डिग्री इक्वेटर, ट्रॉपिकल रीजन 23.5, नॉर्थ 23.5, साउथ ट्रॉपिकल, then temperate and then polar. राइट, ऐसे हमने क्लासिफाई किया है. यहाँ पर ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर. टेम्परेट ग्रासलैंड, प्रेरीज एंड स्टेपीज, मेडिटेरियन सी, नॉर्दर्न चाइना, मैरीटाइम साइक्लोनिक रीजन, कॉन्टिनेंटल साइक्लोनिक रीजन एंड कूल कॉन्टिनेंटल रीजन. जबकि पोलर एरियाज में हमने कोल्ड फॉरेस्ट, टैगा, साइबेरियन, कनाडाइन टाइप, टुंड्रा रीजन और हाई माउंटेनियस एरियाज को शामिल किया. तो जैसा जिसका एरिया, जैसी जिसकी नेचुरल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, वैसे ही बर्फ. राइट. So in these regions, natural resources such as climate, landform, soil and vegetation determine the primary occupation. कौन कहाँ पर क्या करेगा, ये इस बात से डिटरमाइन होता है. Hope you understand the primary occupation system well. In my next video, I am going to introduce about the secondary occupation. Till then, thank you and have a nice day.